Good morning, students. Today we will learn chapter 2 biological classification. In this chapter we will learn what is the classification of living organism. Classification is the arrangement of living organisms according to their similarities and differences. You can see here identification of differences among organisms and placing them into groups that reflect their most significant features and relationship is called the biological classification. Aristotle was a Greek scientist which proposed firstly the biological classification as plants and animals. So he is known as the father of the classification. The further classification we will study in this five kingdom theory. Five kingdom classification given by the R.H. Whitaker in 1969. He classified the living organisms in five kingdoms according to their complexity of cell, complexity of organism and nutrition. Complexity of cell means there are two types of cell, prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic cell does not have nuclear membrane and nucleolus, so it is not well developed. Eukaryotic is a well developed nucleus. It has nucleus and nuclear membrane. Complexity of organisms means organisms are of two types: unicellular, they have a single cell, or a multicellular, they have more than one cell. Nutrition, what is the mode of nutrition in or living organisms? Autotrophs and heterotrophic. Autotrophs, they depends on self for make their own food by photosynthesis, and heterotrophs are depends on other. Five kingdom classification of Whitaker is Monera, second Protista, third fungi, fourth plantae and fifth animalia. So let's start the first kingdom, Monera. Monera includes prokaryotes, means all the bacteria are present in the kingdom Monera. Bacteria are the simple organism. They have this is a thread like structure is flagella by which it can move from one place to another, and this has cell wall made up of polysaccharides and DNA, cytoplasm and ribosome. They are unicellular. जेनेटिक मटीरियल इज नेक्ड यानी सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट्स. Ribosomes are of 70s type and bacteria are photosynthetic and chemosynthetic. Chemosynthetic means they synthesize chemicals in the form of sulfur, iron. So they are known as sulfur bacteria, iron bacteria. They are non-motile और मूव बाय द फ्लैजिला. अभी आपको ऊपर बताया था दिस इज अ फ्लैजिला. अगर ये फ्लैजिला है तो ये मूवमेंट कर सकता है. अगर ये फ्लैजिला बैक्टीरिया में नहीं है तो ये स्टेबल होता है, नॉन मोटाइल होते हैं. सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक and most organisms bear resist cell wall peptidoglycan. This is a polysaccharide and reproduced by the binary fission. यानी parent cell divide into daughter cells. Or budding. Budding is a outgrowth. A bud is a outgrowth like structure that develops on the parent cell, and after some time it detach and survive individually. Example of Monera are bacteria, mycoplasma and cyanobacteria. Bacteria, according to their shape, there are four types of bacteria: Coccus, Bacillus, Vibrio and Spirillum. Coccus are spherical or round in shape and they live in a colony or a groups. And Bacillus are the rod shaped bacteria. एंड विब्रियो इज द कॉमा शेप. जैसे हिंदी और इंग्लिश में आप कॉमा लगाते हैं वैसा इसका शेप होता है. एंड स्पाइरिलम मीन्स
स्पाइरल जैसा होता है, यानी जैसे स्नेक का स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, मतलब ऐसा माना जाता है कि बैक्टीरिया वहां पर भी प्रेजेंट है जहां पर अभी तक लाइफ सरवाइव नहीं कर रही है। सो दे आर फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफ। Archaebacteria, according to their origin, bacteria are of two types, Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria are the ancient bacteria and सबसे प्राचीन यानी पुराने बैक्टीरिया माने जाते हैं और दे कैन लिव इन द हार्श और अ डिफिकल्ट हैबिटेट में भी रह सकते हैं, जहां लाइफ को सोचा नहीं जा सकता वहां भी ये सर्वाइव करते हैं। देयर आर और थ्री टाइप, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिलस एंड मैथेनोजेंस। हेलोफिल्स लिव इन अ सॉल्ट लविंग, यानी ये मैराइन वाटर, ओशन, सी वाटर में रहते हैं जहाँ सॉल्टी वाटर होता है। एग्जाम्पल हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकोकस। Thermoacidophilus present in hot spring, thermoplasma. Methanogens are methanobacterium. They generate or produce methane gas or a biogas. Methanogens are present in the stomach of the gut of the ruminant animals and produce methane or a biogas from the dung of the animals like cow, buffaloes, etc. Eubacteria are the advanced bacteria or a true bacteria. They have the rigid cell wall and they have flagellum, so it can it can move. The example are blue-green algae and cyanobacteria. Cyanobacteria are photosynthetic. They make their own food. They are unicellular, यानी have single cell. Colony यानी live in group. And filamentous यानी structure thread like होता है. And they have surrounded by the gelatinous sheath. यानी एक जिलेटिन जैसा सब्सटेंस होता है जो इनके चारों तरफ होता है और इनके चारों तरफ मॉइस्चर बनाए रखता है, जिससे ये प्रोटेक्ट होते हैं। सम यूबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय द स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। दिस इज अ nostoc or Anabaena cyanobacteria. It has the specialized cell. This is a special cell. Name is heterocyst. By heterocyst, nostoc or cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen, into the and convert nitrogen into the nitrite and nitrate. Chemosynthetic autotroph means they produce or synthesize food from the organic substance in the form of nitrate, nitrite, phosphorus, nitrogen, iron and sulfur. So they are known as the sulfur bacteria. If they synthesize sulfur, known as sulfur bacteria. If they synthesize iron, known as iron bacterium. Heterotrophic bacteria. Heterotrophic means depend on others for their food. They are mostly decomposer, means they take their food from the decaying or the dead material. They help in making curd from milk, यानी दूध से दही बनाने में ये हेल्प करते हैं। एंड एंटीबायोटिक, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में, एंड डिजीज क्रिएट करते हैं जैसे कॉलेरा, टाइफाइड एंड टिटनस, ये डिजीज क्रिएट करते हैं एनिमल्स में। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। फिजन मतलब जो बैक्टीरिया का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे पार्ट में, फ्रेगमेंट में टूट जाता है और एवरी पार्ट मेक्स अ न्यू थ्रेड ऑफ और अ फ्रेगमेंट ऑफ बैक्टीरिया और एल्गी। दे ट्रांसफर बैक्टीरिया जो सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट कंजुगेशन और ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर इज पॉसिबल. इट इज नोन एज द कंजुगेशन. माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गन. ये आपको कॉम्पिटिशन में भी बहुत काम आने वाला है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का एग्जाम्पल क्या है, माइकोप्लाज्मा. ये भी ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं और ये पैथोजेनिक होते हैं. एक भी माइकोप्लाज्मा अभी तक पता नहीं चला जो कि हमारे यूजफुल हो.
because mycoplasma are animals, so cell wall is absent, but outer membrane is cell membrane. It has DNA. This is a thread-like structure, DNA, and ribosome, RNA. It has. Second kingdom is Protista. Protista are unicellular and eukaryotic. Unicellular and eukaryotic means well-developed nucleus present in all Protista. Protist. They are aquatic and can live in moisture places. They have the symbiotic association with fungi, and they have well-defined nucleus and membrane-bound nucleus means mitochondria, chloroplast, Golgi body, or endoplasmic reticulum, etc. They have cilia or flagella. Cilia and flagella help them to move. This is a पैरामीशियम. दे हैव, ये देख रहे हैं आप, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसके चारों तरफ. ये क्या है? सीलियां हैं जो थाउजेंड्स होते हैं नंबर में, और सारे सीलिया मिलकर पैरामीशियम को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, या इसका फूड इसको फूड तक पहुंचाने में इसको हेल्प करते हैं. क्राइसोफाइट्स. Protists are divided into the 5 classes. First is chrysophyte. They includes diatoms and golden algae. These are the diatoms. Diatoms has the cell wall made up of silica, जिसकी वजह से सिलिका की वजह से इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है. They are present in fresh water and marine water. They are planktonic, यानी they can swim. They have the soap box, यानी इसके चारों तरफ एक soap box होता है जो इनको प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि सिलिका की इनकी सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से ये बहुत मैनी ईयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं. दे आर एक्यूमुलेशन फॉर्म. जब ये बहुत सारे हो जाते हैं, सॉइल में इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तब ये डाइटेमियस अर्थ बनाते हैं. यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, इनका यूज होता है. सेकेंड है डाइनोफ्लैजिलेट. डाइनोफ्लैजिलेट, डाई मतलब टू, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला. इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं. देखिए यहाँ लिखा है हैव 2 फ्लैजिला. 2 फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है. ये फोटोसिंथेटिक होते हैं. सेलुलोज की सेल वॉल होती है, और इनमें सेलुलोज यानी फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल के अलावा येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर भी प्रेजेंट होता है. अगर रेड कलर प्रेजेंट है तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, जो कि रेड टाइट्स बनाते हैं. यहाँ पर देख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको, यहाँ सी का वाटर रेड हो गया है, क्योंकि जब ये स्प्लिट हो जाते हैं तो इनका रेड पिगमेंट बाहर आ जाता है और वो पूरे वाटर को रेड कर देता है. और ये पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है. जो मैराइन एनिमल्स है यानी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए हार्मफुल होता है, इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है. द थर्ड ग्रुप इज यूग्लिनॉइड. यूग्लिनॉइड इज has a only single membrane in this euglena. Euglena is a photosynthetic. Euglena is an animal, but it has chlorophyll and can do photosynthesis and make their own food. This is a euglena. This is a green part is like the chlorophyll. ये क्लोरोफिल है जिसकी वजह से अपना फूड बना सकता है. जब ये फूड नहीं बना सकता तो हेटरोट्रॉफिक हो जाता है, अदर एनिमल्स की तरह अपना फूड लेता है. फोर्थ इज स्लाइम मोल्ड्स. दे आर सेप्रोफिटिक एंड फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल. स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेते हैं. और जब दे आर ये अनफेवरेबल कंडीशन में जब ये एग्रीगेट हो जाते हैं तो ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं. प्लाज्मोडियम या स्पेशल सेल बनाते हैं, और ये प्लाज्मोडियम फ्यू सेंटीमीटर से लेके कई स्क्वायर मीटर तक बड़े हो सकते हैं. The last group of protista is protozoa. Protozoa are single celled and they are 4 types. Amoeboid, they are irregular in shape like amoeba. Flagellate, trypanosoma यानी sleeping sickness कहते हैं. Ciliated यानी प्रोटोजोन्स, प्लेरामीशियम जैसा आपने ऊपर देखा अभी, स्पोरोजोन्स यानी ये स्पोर्स बनाते हैं जो मलेरिया को
का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, जिसे हम समझते हैं कि हमें मॉस्क्यूटो से होता है। एक्चुअल में हमें मॉस्क्यूटोस के काटने से नहीं होता, मॉस्क्यूटोस की बॉडी पर प्लाज्मोडियम होता है और जब वो मॉस्क्यूटो हमें काटता है तो प्लाज्मोडियम हमारे अंदर एंटर कर जाता है, जो मलेरिया को क्रिएट करता है। द थर्ड किंगडम इज फंजाई। फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे आर नॉन वेस्कुलर, यानी इनमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते, जबकि ये प्लांट है। दे रिप्रोड्यूस बाय द स्पोर्स कॉल्ड द कॉनिडिया, दीज आर द कॉनिडिया, कॉनिडिया प्रोड्यूस ऑन द कॉनिडियो फोर्स, कॉनिडियो फोर के ऊपर कॉनिडिया लगते हैं, जो कि देख रहे हैं राउंड शेप में और एक के ऊपर एक सीक्वेंस में लगे हैं। सबसे ऊपर का कॉनिडिया सबसे पहले मैच्योर हो जाता है और बाय एयर हेल्दी लीव्स में चला जाता है। Depending on species, continuous sexual and asexual spores are produced. देख रहे हैं यहाँ पर asexual spores are. This is the rhizopus, a bread mold, यानी ब्रेड पर होने वाली रोटी पर होने वाली फंजाई फफूंदी। इसमें देख रहे हैं ये राउंड स्पेस है द स्पोरेंजिया, spores are developed into the sporangia. When spores mature, the sporangium is split and all the spores releases into the air and moves to the healthy cells. And this is a hypha. हाइफा देख रहे हैं, जो फंजाई का स्ट्रक्चर जो होता है वो थ्रेड लाइक होता है, जिसे हम हाइफी कहते हैं, और वो हाइफी एक थ्रेड है और जब उस थ्रेड का गुच्छा बन जाता है तो हम उसे माइसिलियम कहते हैं, यानी जाल, धागों का एक जाल। तो ये देख रहे हैं ये हाइफी है, एक पार्ट को देखें तो ये हाइफी है और ये सब मिलकर इसकी ब्रांचेस बना रहा है, तो इसे कहते हैं माइसिलियम। तो जो फंगस की स्ट्रक्चर है वो माइसिलियम होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और इसमें स्टोर्ड फूड स्टार्च के फॉर्म में रहता है। न्यूट्रिशन इन फंजाई सेप्रोफिटिक होता है, पैरासिटिक होता है, मींस डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर शेल्टर एंड फूड। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मींस लिव टुगेदर। Fungi are divided into four classes: Phycomycetes, Ascomycetes, and Basidiomycetes and Deuteromycetes. Deuteromycetes देखें इसके the करेक्टर्स हैं हाइफा, असेप्टेड, सेप्टेड, सेप्टेड, सेप्टेड। तो देख रहे हैं यहाँ पर असेप्टेड और सेप्टेड का क्या मीनिंग है। देख रहे हैं सेप्टेड और असेप्टेड, these are the septed hyphae. The septed hyphae has the internal wall. देख रहे हैं ये इंटरनल वॉल है इनमें, जिसकी वजह से हाइफी एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया है और एवरी पार्ट हैज वन न्यूक्लियस और एवरी पार्ट एक सेल का काम कर रहा है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 सेल हो गई है, लेकिन ये दिस इज नॉन सेप्टेड या असेप्टेड, देयर इज नो इंटरनल वॉल, सो सिंगल सेल हैज मैनी न्यूक्लियस। तो इनमें इनके बीच में वॉल नहीं होती, उनके बीच में वॉल होती है, जिसे हम सेप्टा कहते हैं। किंगडम प्लांटी, द फोर्थ ग्रुप ऑफ Whittaker classification. These are the plants. Most of plants are means higher plants are eukaryotic. क्लोरोफिल होता है इनमें सेलुलोज की बनी सेल वॉल होती है और प्लांट्स जो है वो टिश्यू और ऑर्गेन में डिवाइड रहते हैं और ये अपना फूड बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड क्रिएट कर सकते हैं और ये सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स स्पोरोफिटिक फेज जो कि डिप्लॉइड होती है और गैमेटोफिटिक फेज जो कि हैप्लॉइड होती है, वो एक के बाद दूसरी, अगर पहले गैमेटोफिटिक है तो फिर स्पोरोफिटिक आएगी, स्पोरोफिटिक है तो फिर गैमेटोफिटिक आएगी, तो ये अल्टरनेट चलती रहती है जनरेशन। प्लांट किंगडम डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स, क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम। Cryptogams further divided into 3 parts: Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. Phanerogams are divided further in 2 parts: Gymnosperm and Angiosperm. Gymnosperm and Angiosperm are seeded plants, but Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta are non-seeded plants. We learned about the plant kingdom in chapter 3. Kingdom Animalia. Animalia are eukaryotic, multicellular and heterotrophic. यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, हेटरोट्रॉफिक यानी डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड, डिपेंड्स ऑन अदर्स एंड एनिमल कंटेंस
all the cell organelles like nucleus, mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, ribosome, etc. They have tissue, organ and organ system. Organ system मतलब digestive system, respiratory system, circulatory system, etc. Most animals have the ability to move. They show rapid, यानी एनिमल्स वन प्लेस से अदर प्लेस पर मूव कर सकते हैं, बट प्लांट जो है वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, स्टेबल रहते हैं. सो इट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स. वे मूव नहीं कर सकते, वो मूव कर सकते हैं. तो हम इस तरीके से इनको कंपेयर कर सकते हैं. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.